پی ٹی آئی رہنما شہباز گل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ شہباز گل کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ شہباز گل کو قومی اداروں کے خلاف بیان بازی پر اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز گرفتار کیا تھا۔ ریاست کی مدیت میں مقدمہ درج دفعہ 505، 120، 153، 153A، 124 اور 131 بھی مقدمے میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شہباز گل اور ڈرائیور پر پولیس تشدد کے الزامات جھوٹے نکلے۔ گرفتاری کے وقت شہباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد یا زبردستی نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کے ڈرائیور کو ہاتھ لگایا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے شہباز گل کی گرفتاری یا تشدد کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا۔ سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مذموم مہم کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ اسکرپٹ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بنایا گیا۔ فواد چودھری اور شہباز گل نے اداروں کے خلاف منفی مہم شروع کی۔ ایک نجی چینل نے سازش کے تحت مذموم مہم چلائی۔ اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ تمام ٹی وی چینلز پیمرا قوانین پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ کچھ نیوز چینلز پر ٹھوس شواہد کے بغیر اداروں کے خلاف غلط خبریں نشر کی گئیں۔ پیمرا کی ریاستی اداروں کے خلاف مذموم مہم روکنے سے متعلق ہدایات جاری۔ غلط معلومات کو نشر کرنا اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کے مترادف ہے۔ منفی اور غلط معلومات نشر کرنا اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے خلاف ہے۔ ترجمان پیمرا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ روپیہ مزید مستحکم۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی۔ ڈالر کی قدر میں 2 روپے 51 پیسے کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے اور 49 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندیاں مزید سخت۔ سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تعینات۔ مذہبی اجتماعات پر پابندی نے بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ حریت قیادت۔ بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو شدید دھچکا۔ ریاست بہار میں حزب اقتدار جنتا دل یونائیٹڈ نے بی جے پی سے اتحاد توڑ دیا۔ جنتا دل اور آر جے ڈی کی حکومت بننے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے استعفیٰ دے دیا۔ آج شام نئی حکومت کے ساتھ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ قوم 75واں یوم آزادی منانے کے لیے پرعزم۔ ہر سو ہلالی پرچموں کی بہار۔ بازاروں میں اسٹال سج گئے۔ بچے جھنڈیوں، بیجز اور برقی کمکموں کی خریداری میں مصروف۔ 14 اگست کے لیے والدین سے قومی پرچم والے کپڑوں کی فرمائش کر دی۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 4 خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری۔ آج سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز۔ کاغذات 13 اگست تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی۔ ضمنی انتخاب NA 22 مردان، NA 24 چارسدہ، NA 31 پشاور اور NA 45 کرم میں ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 352 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.64% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز ملک میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ وائرس سے متاثرہ 153 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ قومی ادارہ صحت۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی۔ صہیونی فورسز کی جانب سے مغربی کنارے میں جارحیت کا آغاز۔ نابلس میں صہیونی فورسز کی کارروائی۔ 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید۔ ایران نے روسی راکٹ کی مدد سے اپنے سیٹلائٹ کو مدار میں چھوڑ دیا۔ عمر خیام نامی سیٹلائٹ کو قازقستان میں سویوز راکٹ کی مدد سے بیکانور لانچنگ تنصیب سے روانہ کیا گیا۔
ईरान के मुताबिक सैटेलाइट को माहौलियाती निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताहम रूस पर इसे अपनी फौजी कार्रवाई के दौरान यूक्रेन की निगरानी के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। श्रीलंका में सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का नए इंतखाबात कराने, मुल्की असासे फरोख्त न करने और आवाम को सब्सिडी देने का मुतालबा। दूसरी जानिब श्रीलंकन हुकूमत ने IMF से कर्ज की किस्त की वसूली से कबल सारा बोझ आवाम पर डाल दिया। बिजली की टैरिफ में 264% इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाव की 5वीं बरसी। उन्होंने जज़ाम के मरज के खात्मे के लिए 56 बरस तक इंसानियत की खिदमत की। डॉक्टर रुतफाव की काविशों से पाकिस्तान जज़ाम के मरज पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल हुआ। हुकूमत पाकिस्तान, जर्मनी और मुतादिद आलमी इदारों ने उन्हें एज़ाज़ात से नवाजा। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसाखेल, शेरानी और सिब्बी की नदी नालों में तुगयानी का खदशा। आइंदा 24 घंटों में शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। ज़हनी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की पाकिस्तान आमद शुरू। सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असद अली वतन वापस पहुंच गए। एथलीट्स का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दौरा नेदरलैंड्स के लिए कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। ऐलान करदा स्क्वाड का पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच। कौमी स्क्वाड 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब लाहौर से रॉटरडैम रवाना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। तफसील आपको बताएंगे वाहद जावेद। गिरफ्तार मुलजिम शहबाज गिल को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद कचहरी में सिविल जज उमर शबीर की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से जिस्मानी रिमांड हासिल करने से मुतालिक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम से न सिर्फ वो मोबाइल फोन बरामद करना है बल्कि वो पर्चा भी बरामद करना है जिसको प्रोग्राम में पढ़ा गया, और इसके अलावा इस मामले की मजीद तहकीकात भी करनी है, जिसके लिए मुलजिम के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम अदालत ने मुलजिम शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को निजी TV चैनल ARY पर कौमी इदारों, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी और बगावत पर उकसाने के बयानात पर सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना कोसार की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शहबाज गिल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। मुलजिम शहबाज गिल के खिलाफ FIR में बगावत, अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ उकसाने, कौमी इदारों के सरबराहों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयान देने जैसी संगीन दिफात मुकदमे में शामिल की गई हैं। मुलजिम शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की तरफ से बेबुनियाद और झूठ पर मबनी बयानात दिए गए कि मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त उस पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया। मुलजिम शहबाज गिल की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आ गई है, जिससे मुलजिम शहबाज गिल और ड्राइवर पर पुलिस तशद्दुद के इल्जामात झूठे निकले। फुटेज में देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी के वक्त शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद या जबरदस्ती नहीं की गई और न ही इनके ड्राइवर को पुलिस की तरफ से हाथ लगाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से मुलजिम शहबाज गिल की गिरफ्तारी के दौरान अगवा और तशद्दुद जैसे झूठ का पोल मुकम्मल तौर पर खुल गया है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि सानहा लसबेला के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा बाकायदा साजिश का हिस्सा है। साजिश में मुलव्विस तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सानिया लसबेला के हवाले से मनफी बयानियां सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। एक बाकायदा मुलाकात में ये साजिशी मंसूबा तैयार हुआ। वजीर दाखिला ने कहा कि नौजवानों को गुमराह और कौम को तकसीम करने वाला शख्स अब इदारों में भी तकसीम और बदनज़मी फैलाना चाहता है। जो हम ये कहते रहे कि इमरान खान इस कौम को तकसीम कर रहा है, ये नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है, वो गुमराही जो है सानिया लसबेला के शहदा के ख़िलाफ़ जिस तरह से सामने आई और पहली दफ़ा ये महसूस किया गया कि इस गुमराही के मतलब कौम को इदराक होने को जा रहा है। एक साजिश के तहत एक बयानिया जो है वो बनाया गया, वो पूरा स्क्रिप्ट था जो बाकायदा इमरान खान की ज़ेर सदारत मीटिंग में बनाया गया। उस मीटिंग में जो इब्तदाई इतलात हैं उसमें और लोग भी मौजूद थे और उसके बाद ये ज़िम्मेदारी जो है दो बंदों को सौंपी गई। एक निजी चैनल उसकी इंतज़ामिया को साथ इस साजिश में शामिल किया गया, उसका तयन भी जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी ज़ाब्ते के तहत अमल में लाई गई है। केस का फैसला अदालत करेगी। पीटीआई की तरह हम झूठे मुकदमे बनाने पर यकीन नहीं रखते। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल साहब को जो है वो गिरफ्तार किया है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ किया है। अदालत में हम पेश करेंगे, फैसला अदालत करेगी। इसके मतलब इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि किस जमहूरियत में इस किस्म की शर्मनाक हरकत होती है। भाई इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? क्या कोई हमने को 15 किलो हीरोइन बरामद कर ली उसकी गाड़ी से? हालांकि कर सकते थे, लेकिन हमने तो ये शर्मनाक हरकत हमने नहीं की और इंशाल्लाह करेंगे भी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात तसल्ली बख्श रहे। यकम मुहर्रम से अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सिक्योरिटी इदारों ने अमन व अमान यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैमरा ने रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात को रोकने से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी हैं। पैमरा तर्जुमान के मुताबिक कुछ न्यूज़ चैनल्स ठोस शवाहिद के बगैर इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने में मुलविस हैं। ऐसे मवाद को नशर करना अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात को न्यूज़ चैनल्स पर नशर करना इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के मुतरादिफ है। तमाम टीवी चैनल्स पैमरा कवानीन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। पैमरा की जानिब से कहा गया है कि सैटेलाइट टीवी चैनल्स खुसूसन खबरों और हालात हाजरा के प्रोग्राम्स में बाज़ एंकर्स, मेहमान और तज्जियाकार बगैर किसी सबूत और ठोस शवाहिद के रियासती इदारों के खिलाफ गलत और बेबुनियाद मालूमात फैलाते हैं। ये अमल न सिर्फ रियासती इदारों की बदनामी का बायस बन रहा है, बल्कि वो रियासती इदारों के खिलाफ तयशुदा प्रोपोगंडे का हिस्सा बन रहे हैं। आईन पाकिस्तान के तहत इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है, मगर कानून के दायरेकार में रहते हुए राय का इजहार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात के इआदा करते हुए मुख्तलिफ शुबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान की सालों से फरागदिलाना हिमायत को सराहते हुए इक़्तिसादी शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी के हालिया ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने अमारात में हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया और अमाराती भाइयों के साथ भी गहरी हमदर्दी जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म के अप्रैल 2022 में मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान किए गए फैसलों को दोहराते हुए दोनों रहनुमाओं ने इस पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया और सरमायाकारी, तवानाई और बुनियादी ढांचे की तामीर में शराकतदारी समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़या और हालिया हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरों की अफसोसनाक मौत पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने मुअस्सर इक़दामात करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, आने वाले दिनों में महंगाई भी कम होगी। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क के माशी हालात में बेहतरी आ रही है और दरामदात में भी कमी आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF से रवामा किस्त मिलने की कवी उम्मीद है।
Pakistan getting into a default-like situation. But thankfully, we've made some significant changes. We've brought in significant austerity, belt tightening, and I think we've averted that situation. We are now in an IMF program. We've reached a staff level agreement. We expect to get a board approval later this month. We've taken off subsidies from fuel, from power, other things. We've raised taxes. So I think we are headed in the right direction. ابھی آپ کو بتائیں کہ کاروبار کے آغاز سے ہی آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ روپیہ بھی مزید مستحکم ہو رہا ہے اور ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. ڈالر کی قدر میں 2 روپے 51 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے اور 49 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. مزید تفصیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ضمیر عباس سے. جی ضمیر، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی، آج بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. اس وقت 100 انڈیکس ہے تقریباً 400 پلس پوائنٹس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 42,610 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ ایک حکومتی پالیسیز کا اب نتیجہ ہے کہ جو حکومت نے امپورٹس کے اوپر ایک بین لگایا تھا، تو اس کے بعد پہ جو ڈالر جو سیو ہوتے جا رہے ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر انٹیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو پیسے ہمیں باہر سے آ رہے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں یا جو دوست ممالک ہمیں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے فورن ریزروز بڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایک اثر جو ہے مارکیٹ پہ بھی پڑ رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ ہمارے اوپر جو ڈالر کے ریٹس ہیں اس میں بھی ہم نے کمی دیکھی. صبح سے لے کے اب تک تقریباً 2 روپے 51 پیسے کی کمی ہم نے دیکھی ہے اور اس وقت ڈالر 221 روپے 50 پیسے پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے مارکیٹ میں. یہ ایک اگر دیکھا جائے پچھلے 2 سے 3 دن میں جس طریقے سے بہت تیزی سے ڈالر گرا ہے، اس کا سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل صحیح جا رہی ہیں. ابھی تک صبح سے ٹریڈ سے لے کے اب تک تقریباً 400 سے زائد پوائنٹس اضافہ ہو چکا ہے اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ بہت اچھی نوید ہے یہ پاکستان کے لیے، خاص کر کے اکنامیکل گراؤنڈ میں، کہ اب حکومت ایک صحیح سمت میں کام کر رہی ہے اور اسی چیز کا تسلسل برقرار رہا تو مزید انڈیکیٹرز اچھے ہوں گے. جی بہت شکریہ ضمیر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ملکی معیشت کے لیے اس مثبت رجحان پر بات کرتے ہیں اقتصادی ماہر امور اور احمد مسعود خان سودی سے. اس معاملے پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ کون سی حکومتی پالیسیز ہیں جو ڈالر کی قیمت میں گرنے کی وجہ بن رہی ہیں، اور کیا روپے کی جو قدر بڑھنے کا رجحان ہے کیا یہ جاری رہے گا؟ جی، یہ انشاءاللہ نیچے آئے گا، کیونکہ اس میں جو مین فیکٹر تھا وہ ہائیڈل پاور کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا اور آئل کی امپورٹ میں کمی ہوئی، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ جو تھا پاکستان کا وہ اس میں کمی آئی اور آئندہ ماہ اسے سرپلس ہونے کا امکان ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بھی اس میں اور بھی کمی آ جائے گی. آج اچھا احمد مسعود صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بھی مثبت سمت میں جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ابھی ریسنٹلی کل میٹنگ ہوئی ہے وزیر خزانہ کی ٹریڈرز کے ساتھ، تو انہوں نے جو حکومت کے ادارے ہیں نا ان میں بہتر ڈیویڈنڈ دینے کا اعلان کیا ہے اور اسی طرح ملک کی جو معاشی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے اور یہ جو پاکستان کے بانڈ تھے، سکوک بانڈ، یورو بانڈ، اور یہ ان میں تقریباً 3% کی کمی آئی ہے اور یہ سارا پیسہ سٹاک مارکیٹ میں آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہی پیسہ ملے گا تو ساتھ ہی ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے بھی پیسہ ملے گا جو سٹاک مارکیٹ میں بہتر اثرات پیدا کرے گا. بالکل صحیح. یہ بھی بتائیے گا آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا؟ جی بالکل، یہ ابھی جو ان کے فائنینشیل ریزلٹ آ رہے ہیں کمپنیوں کے وہ بھی بہتر آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں، آئل کمپنیز ہیں اور دوسری کمپنیاں جن کو گورنمنٹ کنٹرول کر دیا ہے، ان کے بہتر ڈیویڈنڈ آنے پہ جو اسٹاک مارکیٹ میں اور بھی بہتری آ سکتی ہے. اچھا احمد مسعود صاحب، جو دوسرے ماہرین ہیں معیشت کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جو ڈالر کی اصل قیمت ہے وہ قریباً 190 سے 200 روپے کے قریب ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس وقت وہ 221 روپے ٹریڈ ہو رہا ہے. ہمارے ناظرین کو اس کی وجہ بھی بتائیے گا کہ کیوں یہ 221 جبکہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 190-200 کے قریب ہے، اور کب تک یہ واپس اپنی اصل قیمت پر آ سکتا ہے؟ یہ جو ہی امپورٹ بل میں کمی آئے گی، جیسے جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں اور $90 سے بھی نیچے آ گئی ہیں، تو اس کے بعد یہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ہوگا سلسلہ وہ برابر آ جائے گا، تو اس میں پھر اس کی مزید کمی 10 روپے کی امیڈیٹلی مزید کمی آ سکتی ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اور نیچے آئے گا.
ठीक है। अच्छा, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आने वाले दिनों में महंगाई पर भी कमी की नवीद सुनाई है, आप क्या कहेंगे, इस पर रोशनी डालिएगा। ये सिंपल सी बात है जी, महंगाई का जब डॉलर से कंसर्न है और इंटरनेशनल मार्केट से कंसर्न है, जब एक चीज आप 225 रुपए के डॉलर से इंपोर्ट कर रहे हैं और एक चीज को आप 180 रुपए के डॉलर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली महंगाई में कमी आएगी। और यहाँ पे प्रोडक्शन जब बढ़ रही है, एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो वो लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, तो वो महंगाई में कमी का बायस बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक्तिसादी उमूर के माहिर अहमद मसूद खान सूदी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में बतदरीज कमी हो रही है और मईशत के लिए ये एक यकीनन मुस्बत रुझान है। खबरनामे में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि शहबाज गिल इमरान खान की मर्जी के बगैर इदारों के खिलाफ इस तरह की घिनौनी साजिश नहीं कर सकता। अपने एक बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान और इनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ है। वो चाहते हैं मुल्क का हर इदारा और इसका सरबरा उनका गुलाम बनकर रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस से बचने और ध्यान हटाने के लिए बेहुदा और नाकाबिल बर्दाश्त हरकतें कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम मुल्क की जमहूरियत और अपने तमाम इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान मुल्क में जमहूरियत और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें, वरना आवाम उनको कभी मुआफ नहीं करेगी। वजीर मेहनत सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इमरान न्याजी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। एक बयान में सईद गनी ने कहा कि इमरान न्याजी मुल्क के इदारों को तबाह करने के मिशन पर है और शहबाज गिल ने इमरान न्याजी का बयानिया पेश किया। सईद गनी का कहना है कि इमरान न्याजी की गैर मुल्की फंडिंग अपना रंग दिखा रही है। इमरान न्याजी के अच्छे भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी अपनी जंग में अपने बच्चे शामिल क्यों नहीं करता। और नाज़रीन, पाकिस्तान का दिल यानी लाहौर हमेशा से ही सियासी और समाजी तहरीकों का मरकज रहा है। तहरीक पाकिस्तान के दिनों में इस शहर का सियासी माहौल कैसा था, जानने के लिए देखते हैं शाहिद वफा की रिपोर्ट। कहते हैं जो तहरीक लाहौर में मकबूल हो जाए वो अपने मकासद हासिल करके रहती है। तहरीक पाकिस्तान में लाहौर के भरपूर किरदार का आगाज़ मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास से हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इजलास में शिरकत के लिए 21 मार्च को बजरिया ट्रेन लाहौर पहुंचे तो मकामी क़यादत और तलबा के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। लाहौर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था और लाहौरियों ने न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि इस तहरीक का हिस्सा बने और फिर इस तहरीक ने आगे चल कर के हमें पाकिस्तान की राह हमवार की। जलसे का वक्त अगले रोज दोपहर 3 बजे मुकर्रर किया गया था, ताहम आज़ादी के मतवाले सुबह ही से जोक दर जोक मंटो पार्क पहुंचना शुरू हो गए थे। उस रोज़ लाहौर की फ़िज़ा कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और आज़ादी के नारों से गूंजती रही। जलसे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ नवाब ममदोड के खुतबा इस्तकबालिया से हुआ, जिसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तारीखी खिताब किया। कायद ने अपने 2 घंटे तवील खिताब में वाज़ेह किया कि हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ फ़लसफ़ा हयात पर कारबंद 2 अलग अलग कौमें हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कायद की तकरीर के दौरान जलसा गाह में 1 लाख से ज़ायद लोग मौजूद थे। शहर शहर करिया करिया से हर सूबे से अहम तरीन शख्सियात आए। दर हकीकत यहाँ जो जलसा हुआ उस जलसे की बुनियाद पर ही तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा। अगले रोज 23 मार्च 1940 को मौलवी AK फजलुल हक ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम का मुतालबा किया गया था। ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ये वो मकाम है जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी ने तहरीक पाकिस्तान को एक वाज़ेह समतता की और फिर मुसलमानान हिंद ने 7 साल के कलील अरसे में अलहदा वतन के ख्वाब को सच कर दिखाया। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में 75वां जश्न आज़ादी इसकी तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं, जबकि लोधरा के मुख्तलिफ बाज़ारों में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए खुसूसी स्टॉल सज गए हैं। इन स्टॉल्स पर टी शर्ट्स, मलबूसात और झंडों की फरोख्त जारी है। तफसील के लिए देखिए अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। पाकिस्तान भर की तरह लोधरा के शहरी भी यौम आज़ादी की डायमंड जुबली शायान शान तरीके से मनाने की भरपूर तैयारी में मसरूफ़ हैं।
लोधरा की तीनों तहसीलों के बाज़ारों में जश्न आज़ादी की तैयारियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के स्टॉल लग गए हैं। इन स्टॉलों पर बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन अपनी पसंद की ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बच्चों की ख़रीदारी के लिए आया हूँ। 14 का साल बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाती है। इंशाल्लाह यहाँ पे इस दफ़ा भी बहुत अच्छी जात मनाई जाएगी। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, वो भी अपना सामान वगैरह ले रहे हैं और बच्चे और भी ज़्यादा आएंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। यौम आज़ादी की तैयारियों के लिए कई दिन पहले ही रंग बिरंगी झंडियों से बाज़ार सज गए हैं और लोधरा की आवाम बड़ी तादाद में इन बाज़ारों का रुख कर रही है। इस कौमी त्यौहार के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। छोटे बड़े झंडियाँ, बैजेस और दूसरी चीज़ों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। बैनर, झंडे और बैजेस वगैरह दिलवा रहे हैं और आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, बाज़ार में 14 अगस्त को प्रमोट करें। हर साल मैं अपने पाकिस्तान दे जश्न आज़ादी मनाने और पाकिस्तान दे झंडे लेने घिंदे। जश्न आज़ादी के इस मौके पर हर शहरी अपने अपने अंदाज में वतन पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कोई अपने घरों को सजा रहा है तो कोई पाकिस्तानी परचम के रंग के कपड़े पहनकर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। बच्चे बड़े सभी ज़ोक़ शौक से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इमारतों और मार्केट समेत घरों में सब्ज हिलाली परचम लहराने के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटों से तज़ीन व आराइश का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं मसरूर से अपने नुमाइंदे राना कैसर हयात से। इस कौमी दिन को मनाने के लिए जहां मुल्क भर में तैयारियों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है, वहीं पर पसूर के शहरी भी अपने वतन अजीज़ की 75वीं जश्न आज़ादी के पुरवकार दिन को कौमी यकजहती और जोश व जज्बा से मनाने के लिए पुरजोश है। झंडियाँ ली हैं, झंडे लिए हैं, कपड़े लिए हैं, लाइटें ली हैं घर को सजाने के लिए। जश्न आज़ादी असी पुरजोश तरीके दे नाल मनावांगे। इंशाअल्लाह बच्चों नूं लैके आए हैं बाज़ार, झंडे शंडे खरीद रहे हैं, झंडियाँ और बैज वगैरह लै रहे हैं बच्चे। पसरूर की सड़कों, गलियों और बाज़ारों में दुकानदारों की जानब से स्टॉल भी लगा दिए गए हैं, जिससे हर तरफ सब्ज हलाली परचम की बहार नज़र आ रही है। जबकि ख़रीदारों का रश बढ़ने से रौनक का एक अलग ही समा बंध चुका है। हम अपने घर को सजाने के लिए छोटे झंडे भी खरीदे हैं और बड़े झंडे भी खरीदे हैं, लाइटें भी लगाई हैं। पिछले साल की निस्बत में इस साल कारोबार का ज़्यादा मज़ार है। बच्चे भी बड़े शौक से आ रहे हैं, बड़े भी। कहीं बच्चे पाकिस्तानी परचम के रंगों से रंगे कपड़े खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि शहर की इमारतों और घरों को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 4 खाली नशिस्तों समेत खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन हलकों में NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर और NA 45 कुरम शामिल हैं, जिन पर पोलिंग 25 सितंबर 2022 को होगी। शेड्यूल के मुताबिक 14 अगस्त 2022 को उम्मीदवारों के नाम शाये किए जाएंगे। 17 अगस्त तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 20 अगस्त तक जमा कराई जा सकेंगी। खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई गई है, जिनके लिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद फरीद आफरीदी के दफ्तर में दफ्तरी औकात के दौरान 13 अगस्त 2022 तक जमा की जा सकेगी। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा और PP 241 बहावल नगर में उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 11 अगस्त है, जबकि पोलिंग 11 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहिब में उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज से शुरू है। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है। कौमी असम्बली के इन 2 हलकों में पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज हुक्काम ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद करके लोगों को 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकालने से रोक दिया है। KMS के मुताबिक काबिज हुक्काम ने अज़ादारों के जुलूस निकालने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरे इलाके में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी थी। उन्हें यह खौफ था कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस कहीं भारत मुखालिफ मुजाहिरों में तब्दील न हो जाएं। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में खारदार तारों और बख्तरबंद गाड़ियों से सड़कें बंद कर दी गई थीं।
काबिज भारतीय हुकाम ने सन 1989 में आज़ादी के हक में मुजाहिरों से खौफजदा होकर बड़े जुलूसों पर पाबंदी लगा दी थी। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में काबिज हुकाम की जानिब से मुहर्रम उल हराम के जुलूस पर आयद पाबंदी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की कुर्बानियाँ जालिम के खिलाफ डट जाने का पैगाम देती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को मौजूदा दौर के करबला में तब्दील कर दिया है। मोदी हुकूमत की जानिब से भारतीय पार्लियामेंट में बिजली की तरमीमी बिल 2022 पेश करने के इकदाम के खिलाफ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में महकमा बिजली के हजारों मुलाजमीन और कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुलाजमीन का कहना है कि इकदाम का मकसद शोबे को हिंदुत्व नजरिए से वाबस्ता भारतीय ताजिरों के हवाले करना है। उधर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में नफरत अंगेज जराइम के एक और वाक़े में एक 17 साला मुसलमान नौजवान साहिल सिद्दीकी को बजरंग दल के कारकुनों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब हिंदू इंतहा पसंदों के हुजूम की तरफ से एक नौजवान लड़के को जोदोकोप करने की वीडियो ट्विटर पर वायरल हुई। साहिल के वालिद रऊफ ने कहा कि उनके बेटे को बजरंग दल के कारकुनों ने झूठे दावे पर निशाना बनाया। साहिल को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि इसे पसलियों में गहरी चोट आई और इसकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। भारत में अपोजिशन जमातों की हुकूमतों को कमजोर करके इन्हें गिराने के खेल की माहिर बीजेपी को ही शदीद धचका लगा है, जबकि रियासती बिहार में हिज़्ब इक़्तिदार जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ दिया है और अब वहां जनता दल और आरजेडी की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और वो आज शाम नई हुकूमत के साथ अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। उन्होंने ऐवान में अक्सरियत होने का दावा किया है। इस तरह रियासत बिहार में बीजेपी इक़्तिदार से अलग हो गई है। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने लड़कियों के स्कूलों की बंदिश से मुतालिक साबिक सदर हामिद किरज़ई की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान का मशवरा मानती तो लड़कियों के स्कूलों की बंदिश का मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत चाहती है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए और उलमा को एतमाद में लेकर पॉलिसी वज़ा की जाए। उन्होंने एक बार फिर अलकायदा के सरबराह अयमन ज़वाहिरी की काबुल में ड्रोन हमले में हलाकत की तरदीद या तस्दीक से इनकार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन के दावे से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त 51 साला मोहम्मद सैयद के नाम से हुई है और वो अलबकरेक का रिहायशी है। पुलिस को शुबा है कि मुलजिम ने 4 मुसलमानों को मुख्तलिफ औकात में अपने हमलों में निशाना बनाया है। हमलों की वजह मकामी मुसलमान आबादी सख्त परेशान थी। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मुलजिम के खिलाफ 26 जुलाई को कत्ल होने वाले आफ्ताब हुसैन और 1 अगस्त को कत्ल होने वाले मोहम्मद अफजाल हुसैन के कत्ल का शुबा भी जाहिर किया है। मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गजा की पट्टी में इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी के बाद सेहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में जारियत का आगाज कर दिया है। मगरबी किनारे के शहर नाबलोस में सेहूनी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने शहर के मुताबिक मकामात पर छापे मारे और फायरिंग भी की। मिस्र की सालसी में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गजा में फायरबंदी पर अमल दरामद का आगाज हुआ था और एक दूसरे के खिलाफ मजीद हमले न करने पर इत्तफाक किया गया था, लेकिन इसराइल की जानिब से अब मगरबी किनारे के इलाके में निहत्ते फलस्तीनियों पर जाहिद का सिलसिला जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम ने फ़लस्तीनी इलाकों पर सेहूनी हमलों की मजम्मत की है। तंजीम ने एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी मासूम बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ इसराइली जाहिरियत तस्लीम नहीं करेंगे। रूस में शामिल होने वाले इलाके क्रीमिया में रूस के फौजी अड्डों पर धमाकों में एक शख्स हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि इन धमाकों में उनका हाथ नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा असलहे के पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने नई दिफाई इमदाद की मालियत का तखमीना $1 अरब बताया है। अमरीकी अस्करी हुकाम के मुताबिक ये यूक्रेन के लिए अमरीकी हथियारों और साजो सामान का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इस पैकेज में मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। एक रूसी रॉकेट ने ईरानी सैटेलाइट को कामयाबी से मदार में लॉन्च कर दिया है। सुइज रॉकेट काजाकिस्तान में रूस की लीज पर दी गई बेकानोरो लॉन्चिंग तनसीब से रवाना हुआ। ईरानी सैटेलाइट का नाम 11वीं और 12वीं सदी के ईरानी साइंसदान उमर खयाम के नाम पर रखा गया है।
ایران نے کہا ہے کہ اس سیٹلائٹ کو، جس میں ہائی ریزولوشن کیمرہ نصب ہے، ماحولیاتی نگرانی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور یہ مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں رہے گا. لیکن ایسے الزامات سامنے آئے ہیں کہ روس اسے اپنی فوجی کارروائی کے دوران یوکرین کی نگرانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ گرفتار کیے گئے مظاہرین کو رہا کیا جائے اور ملک میں فوری طور پر نئے انتخابات کرائے جائیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملکی اثاثے فروخت نہ کیے جائیں اور لوگوں کو سبسڈی دی جائے. دوسری جانب سری لنکا میں بجلی کے ٹیرف میں 264% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. بدترین مالیاتی بحران کے شکار ملک میں IMF سے قرض کی قسط کی وصولی سے قبل سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے. موٹر ساز کمپنیاں نئے تقاضوں کے مطابق تحقیق کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. الیکٹرک گاڑیوں کے بعد اب سولر کاروں کو سڑکوں پر دوڑانے کا خواب حقیقت بننے کے قریب ہے. یہ کیسے ممکن ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ناظرین، دنیا بھر میں آبادیاں بڑھنے اور شہر پھیلنے کے نتیجے میں سواری ہر کسی کے لیے ناگزیر ضرورت بنتی جا رہی ہے. گاڑیوں کو ماحول دوست بنانے اور مہنگے ایندھن سے بچنے کے لیے الیکٹرک کاروں کے بعد اب سولر انرجی سے چلنے والی کاریں تجرباتی مراحل سے گزاری جا رہی ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ 2024 تک مارکیٹ میں آ جائیں گی. جرمن کمپنیوں نے وقت کی ضرورت کو بھانپتے ہوئے اہم پیش رفت کی ہے. اب تک کی تحقیق کے مطابق گاڑیوں کو مکمل طور پر سولر انرجی پر چلانا تو ممکن نہیں، بلکہ یہ بجلی کی مدد سے سڑکوں پر دوڑائی جا سکیں گی. سولر انرجی سے چلنے والی گاڑیاں ابھی تجرباتی طور پر تیار کی گئی ہیں، لیکن ابھی ان پر آنے والی لاگت لاکھوں ڈالرز میں ہے. ان کاروں کی چھت پر سولر پینلز لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ گاڑیاں روزانہ 50 کلومیٹر سے زائد تک کا سفر کر سکتی ہیں، جبکہ الیکٹرک بیٹری کے ساتھ سولر کاریں ایک دن میں 500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بھی طے کر سکیں گی. ان کاروں کا وزن 1580 کلو گرام کے لگ بھگ ہے. جرمن کمپنیاں ابتدا میں یہ گاڑیاں برطانیہ اور یورپ میں متعارف کرائیں گی. مستقبل قریب میں کم قیمت سولر گاڑیاں بھی مارکیٹ میں پیش کی جائیں گی جن کی پاکستانی کرنسی میں قیمت 60 لاکھ کے قریب ہونے کا امکان ہے. ناظرین، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث براعظم یورپ بھی شدید متاثر ہوا ہے. فرانس کا 450 کلومیٹر طویل دریائے ڈوبس خشک ہو رہا ہے اور سیاحوں کو سیر کرانے والی کشتیاں اب خشکی پر کھڑی ہیں. دریا کے کنارے موجود ہوٹلوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کو بتائیں کہ فرانس میں طویل عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور اسے گرمی کی کئی شدید لہروں کا سامنا رہا ہے. پورے یورپ میں دریا، جھیلیں اور ڈیم سوکھ رہے ہیں اور پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا نیا اسپیل آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران زیرین سندھ اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے. 4 دنوں کے دوران اس اسپیل میں شدت آنے کا امکان ہے، جس وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. اور ناظرین، لاہور میں موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا. پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے مدثر خان. مدثر، آگاہ کیجیے گا شہر لاہور کا موسم کی کیا صورتحال ہے؟ لاہور میں آج موسم خشک اور گرم رہے گا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت اور حبس میں اضافے کا امکان ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 76 سے 78% رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، ڈیرہ غازی خان، ملتان میں شام کے وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ مونسون کی ہواؤں کا سلسلہ ملک بھر میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ آج شام سے شدت اختیار کر جائے گا اور کل سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاع کے بعد NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا ہے تاکہ تمام جو ضروری اقدامات ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے. نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا مکمل انتظام
कर लिया जाए और तमाम इदारे इस हवाले से तैयार रहें। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बार फिर शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA के एलामिया के मुताबिक गरज चमक के साथ 16 अजला में शदीद बारिशें होंगी। बारिशों के बायस दोबारा सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। PDMA ने लौरलाई, वारखान, कोहलू, मूसाखेल, शिरानी और सिब्बी के नदी नालों में तोगयानी का खतरा जाहिर किया है। मरास्ते में डिप्टी कमिश्नर्स को अहम मकामात पर भारी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इससे कबल जून से शुरू होने वाली मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस अब तक बलूचिस्तान में 170 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हज़ारों मकानात, फसलें, पुल और सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मर्दान और बाजोट से है। PDMA के मुताबिक इस वक्त सूबे के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। लैंडस्लाइडिंग के बायस अपरदीर की बंद सड़कों को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर PDMA ने ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही उमैर को कोहाट के नवाही इलाके कमरढंड में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर शहीद को सलामी पेश की गई और उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए गए। शहीद के अजीज़ो अकारिब समेत लोगों की बड़ी तादाद भी मौके पर मौजूद थी। कोविड के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मजीद 421 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के 16,648 टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.53% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में 159 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आलमी सतह पर कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5,80,000 से ज्यादा मरीजों की तशखीस हुई है, जबकि 1,511 अफराद लुक़मा अजल बने। जापान में 2 लाख, जर्मनी 78,700, जनूबी कोरिया 55,000 और अमरीका में 44,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंसानियत की खिदमत से सरशार पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रुत फ़ाओ की आज 5वीं बरसी है। डॉक्टर रुत फ़ाओ की काविशों से पाकिस्तान में जज़ाम के मर्ज़ पर काबू पाने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल हुआ। वो 10 अगस्त 2017 को कराची में इंतकाल कर गई थी। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जज़ाम जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला मरीजों का जांफशानी से इलाज करना और मुआशरे में जज़ाम से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए जर्मन खातून डॉक्टर कैथरीना रुत फ़ाओ का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। डॉक्टर कैथरीना रुत फ़ाओ 1929 में जर्मनी में पैदा हुई और 1961 में जर्मनी से पाकिस्तान आ गईं। जज़ाम के मरीजों के इलाज और उनकी दादरसी के लिए उन्होंने कराची में मैरी एडलेड लेप्रेसी सेंटर कायम किया। बाद में उन्होंने इसका दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाया और 157 लिटरेसी सेंटर कायम किए। पाकिस्तानी मदर टेरेसा का खिताब पाने वाली डॉक्टर कैथरीना रुत फ़ाओ 56 बरस तक इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ रहीं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तिब के शोबे में उनकी गिरा कदर खिदमात के एवज़ उन्हें मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। 1989 में उन्हें हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, जबकि 2010 में सितारा क़ायद-ए-आज़म और निशान क़ायद-ए-आज़म से भी नवाजा गया। डॉक्टर कैथरीना रुत फ़ाओ 10 अगस्त 2017 को कराची में इंतकाल कर गईं। ताहम मुल्क की तारीख में जज़ाम के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर कैथरीना रुत फ़ाओ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। दौरा नेदरलैंड्स के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबीती कैंप लाहौर में जारी है। बाबर आजम की क़यादत में ऐलान करदा कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रहा है। मैच में कौमी क्रिकेट टीम पहले बैटिंग कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और फ़खर जमान ने इनिंग्स का आगाज़ किया। दोनों टीमों के माबैन दूसरा प्रैक्टिस मैच मनसूख कर दिया गया है। दोनों टीमें कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत सऊद शकील कर रहे हैं, जबकि नेदरलैंड्स के लिए ऐलान करदा कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल अब्दुल्ला शफीक और जाहिद महमूद भी पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में शामिल हैं।
कौमी स्क्वाड 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब लाहौर से रॉटरडैम रवाना होगा। 13 अगस्त से शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए टीमों की भरपूर प्रैक्टिस जारी है। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन में 7 टीमें मद्देमुकाबिल होंगी, जिनके दरमियान 25 मैचेस खेले जाएंगे। टीमों में बाग स्टैलियंस, जम्मू जांबाज, कोटली लायंस, मीरपुर रॉयल्स, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, ओवरसीज वॉरियर्स और रावलाकोट हॉक्स शामिल हैं। रावलाकोट हॉक्स की टीम एजाज का दिफा करेगी। लीग की मेज़बानी मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम करेगा, जहां हर दिन 2 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच रावलाकोट हॉक्स और जम्मू जांबाज के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल 26 अगस्त को खेला जाएगा। 13 अगस्त से शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए टीमों की भरपूर प्रैक्टिस जारी है। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन में 7 टीमें मद्देमुकाबिल हैं। कुछ मज़ीद खबरें शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ क्रिकेट अंपायर रॉडी क्रिटसन कार हादसे में चल बसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 73 साला रूडी क्रिटसन के साथ दीगर 3 अफराद भी हादसे में हलाक हो गए हैं। वो नेल्सन मंडेला के इलाके में गोल्फ टूर्नामेंट में शिरकत के बाद वापस केप टाउन अपने घर आ रहे थे कि उनकी कार सामने से आने वाली कार से टकरा गई। रूडी क्रिटसन ने अपने अंपायरिंग करियर में 108 टेस्ट, 209 वनडे और 14 T20 मैचेस में अंपायरिंग की। जी नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद अदबी किताब मेले की तकरीब से खिताब कर रही हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। हमारा जो ये सिलसिला है सेलिब्रेट करने का 75 साल, ये कुछ 2 हफ्तों से शुरू है और हमारे सारे इदारे इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज का जो फंक्शन है ख़ास तौर पे, वो उसमें हमारी काविश ये है कि जो हमारे मुताबिक कुछ थोड़ी सी किताब बीनी से लोग दूर जाते जा रहे हैं, उनको दोबारा उनका इंटरेस्ट बहाल किया जाए और उनको वापस लाया जाए और उनको ये भी बताया जाए कि ये आपकी हेरिटेज है, इसको आप किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते और ये बेहतरीन तरीका है अपने पास्ट के साथ कनेक्टेड रहने का। हम बहुत मशकूर हैं कि मिस्टर बुक्स ने ये एक हमारी काविश में हमारा साथ दिया और यहाँ पर वाकई जिस तरह हमारे डीजी साहब ने फरमाया है कि कोई खाली हाथ वापस ना जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी किताबें हम यहाँ से ले जा सकें ले जाएँ। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी कल यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन भी है जो 75 सालों की हिस्ट्री को डिजिटली आपको दिखाएगी और इसके अलावा हमारे 2 बहुत जो मेन इदारे हैं GPTV और BBC, उन्होंने अपने जो पुराने फ़नकार हैं और जो लेजेंडरी एक्टर्स और परफॉर्मर्स हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए अपने फंक्शंस अरेंज किए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तारीख़ों में आपको पता चलता रहेगा कि होने वाले हैं। एक हमारी बहुत बड़ी काविश, हमने अपना नेशनल एंथम री रिकॉर्ड किया है। नेशनल एंथम की री रिकॉर्डिंग जो है वो एक अहमियत की हामिल है। ये नहीं है कि पहले कभी ये कोशिश नहीं की गई, लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, जो रिकॉर्ड करने के तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। तो हमने अपने एंथम का ना कोई हरफ बदला है, ना कोई उसकी ट्यून में कोई चेंज है, हमने सिर्फ उसको जदीद तरीक़ों से रिकॉर्ड किया। इसको हम प्राइम मिनिस्टर साहब 14 तारीख को अनवेल करेंगे और हमारा एंथम जो है वो वहाँ पर नई रिकॉर्डिंग के साथ और नई वीडियो के साथ चलेगा। तो ये हमें बहुत इस पर फ़ख्र है कि हम ये अचीव कर पाए हैं और इंशाअल्लाह ये तोहफ़ा हम कौम को ये तोहफ़ा 75 सालों पे देना चाहते हैं। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जी एफ़र्ट हमारी डिपार्टमेंट्स का और जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम कर रहे हैं, और फिर मैं बेहद अपने मीडिया के साथियों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो हमारा बहुत साथ देते हैं। हम उन्हें जहाँ बुलाते हैं वो ज़रूर आते हैं और हमारा साथ कदम ब कदम चलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शामिल। थैंक यू।
जी नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद अदबी किताब मेले की तकरीब से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कुतुब बीनी के रुझान को रिवाइव किया जाएगा क्योंकि इसी तरह से नौजवानों को अपनी तारीख से रोशनास कराया जा सकता है। मिस्टर बुक्स के मशकूर हैं कि उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कल 75 साल तारीख को डिजिटली दिखाया जाएगा और इस मौके पर नेशनल एंथम को भी ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। यकीनन ये आवाम को पसंद आएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही।